So hello everyone. With RBI Grade B 2024 short notice out, the most disheartening news of this year in regulatory bodies was that the vacancies of RBI Grade B 2024 are less than expected. Now, there are various doubts which are associated with this particular news. There are also some of the myths or misnomers also into the minds of students who are preparing for RBI Grade B this year. There were many students who tried to contact me, as well as they gave their responses on our YouTube channel, on our app. The most important thing is that I will share those responses with you separately, but the questions which mainly arised in front of all of us are follows. 1. Should I prepare for this year or next year, sir? So much reduction in the vacancies. Directly, if you see the vacancies for general stream, we can't believe that from almost 150 it has become half, that is 66. So what should we do now? Third, sir, what is the effect of vacancies on the difficulty of exam, on the cutoff? And last important thing is how this vacancies being less in number has affected the mentality of student and maybe the preparation momentum also. So we will try to solve all these 4 questions by understanding the analysis of vacancies versus cutoff, or really in RBI Grade B 2024 exam, if the vacancies are less as expected in our detailed notification which will come on 25th of July, then will these less vacancies affect the cutoff scores and also possibly your selection in this year's RBI Grade B exam? Let's discuss. So to understand that, we should have last 5 years data with us. And yes, that's why I have made a proper data with us, that is vacancies for each of the stream, general recruitment, DEPR recruitment and DSIM recruitment. Here we are more concerned with general stream recruitment. If you see from past 5 years, from 2017, 18, 19, 21, 2020 में एग्जाम हुआ नहीं था, 2022, 2023 एंड 2024 हर किसी का यहाँ पर जनरल स्ट्रीम यू विल सी द वेकेंसीज हैव बीन गिवन. विथ रिस्पॉन्स टू दैट, यस, आई थिंक यू हैव प्रेडिक्टेड राइट. Phase 1 and phase 2 section wise cutoff also I have given for the same years, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 तो अभी पता चलेगा कुछ महीनों में क्या कट ऑफ है. Here we are not trying to prove कि कट ऑफ क्या होगा, बट हियर वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कितनी सारी चीजें हम इमेजिन करते हैं और जस्ट वी कंसिडर देम कि ये होगा इसलिए मैं ये नहीं करूंगा. देयर वर एटलीस्ट 10 to 15 स्टूडेंट्स हु कॉल्ड मी अप इन पैनिक, हु टेक्स्ट मी अप इन पैनिक एंड दे सेड कि सर इस साल तो नहीं देने वाला हूं, अगले साल ही देता हूं, वैसे भी मैं इतना पढ़ नहीं रहा था. सो दिस कैजुअल मेंटेलिटी में एक्चुअली लीड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स इनटू मल्टीपल साइकिल्स ऑफ एग्जाम. और यही तो आपको रोकना होता है, आपको बस 1 साल चाहिए होता है. एंड वैकेंसीज इज नॉट अ इंपॉर्टेंट पार्ट विच शुड बी कंसिडर्ड व्हेन यू आर गिविंग एन एग्जाम. आई कैन प्रूव इट. लेट मी शो यू हाउ. सो यहां पर फेज 1 का कट ऑफ, फेज 2 का और फाइनल आपका टू बी एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर उसका भी कट ऑफ दिया है. नाउ लुक एट इट वेरी केयरफुली टिल द एंड ऑफ द वीडियो. आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. और जितने भी आपके डाउट्स रहेंगे, जितना भी मे बी आपका अंडर कॉन्फिडेंस हुआ है, आई कैन अंडरस्टैंड. फॉर ऑल द स्टूडेंट हु आर अंडर कॉन्फिडेंट एंड लिटिल बिट स्केर्ड कि यार इतना कम अगर कट ऑफ हुआ है तो मेरे चांसेस का क्या, व्हाट अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ मी क्लियरिंग द एग्जाम, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जस्ट ब्लेमिंग फॉर वैकेंसीज, दैट डजंट मेक्स द पॉइंट. लेट्स ट्राई टू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स. सो एज यू सी 2017 में वैकेंसीज थे ऑलमोस्ट 145, 127, 156. 2021 में from 156 almost 100 vacancies increased, that is 270. Then 2022 में अगर आप देखते हो तो 50 वैकेंसीज कम हो गए 238, एंड देन अगेन 10 वैकेंसीज कम हो गए 222. बट अब 2024 में हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, मे बी फॉर एग्जाम्पल जनरली वी वर एक्सपेक्टिंग 10 सीट या 50 सीट ऊपर नीचे हो सकता है, बट नॉट समथिंग स्क्यूड रिडक्शन ऑफ सीट्स. 222 से लेके सीधा 66 तक हमारे सीट्स हो गए. तो ये 66 नंबर अगर आप देखते हो फ्रॉम ऑलमोस्ट 220 टू 66 होना, इट इज लाइक द नंबर हैज रिड्यूस्ड मोर देन हाफ. तो आपको यहां पर पैनिक होने की कोई जरूरत है क्या? नहीं. नाउ व्हाट आर द रीजंस व्हाई दिस सीट्स हैव रिड्यूस्ड? वी डोंट नो. इट मे बी बेस्ड ऑन रिक्रूटमेंट.
ओवरऑल अगर आप हायरार्की देखते हो, रिटायरमेंट ऑफ ऑफिसर्स देखते हो, द पोजीशंस आर ओनली अवेलेबल जहां पर सीट्स वेकेंट है, तो उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट निकलती है। नेक्स्ट ईयर इससे भी कम होंगे क्या? डू नॉट ट्राई टू एंटिसिपेट दैट, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। शायद से नेक्स्ट ईयर में अगेन इट मे कम टू इट्स बैक टू इट्स जनरल नंबर, ठीक है। सो डोंट ट्राई टू एंटिसिपेट एनीथिंग, लेट्स ट्राई टू जस्ट फाइंड आउट कि वैकेंसी से कट ऑफ के ऊपर कोई डिफरेंस होता है क्या, एंड व्हाई आई एम कंपेयरिंग विद कट ऑफ। ऑलवेज रिमेंबर, एग्जाम क्लियर आप करोगे कि नहीं ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कट ऑफ के ऊपर, फेज 1 एंड फेज 2 में। कट ऑफ कैसे निकालते हैं? कट ऑफ निकालते हैं हाउ मच स्टूडेंट्स हैव गिवन द एग्जाम, राइट, एंड सेकेंड इज हाउ मच वैकेंसीज आर देयर। जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और जितने वैकेंसीज है, इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर आपका सिलेक्शन रेशो होता है या फिर क्लियरेंस रेशो होता है। तो सिंपल सी बात है, सिलेक्शन रेशो मतलब फॉर एग्जांपल अगर वैकेंसीज यहां पर 222 है और अगर 1 लाख स्टूडेंट्स यहां पर अप्लाई करते हैं, तो इस 222 नंबर को सिलेक्ट करने के लिए इन दी ऑल दिस 3 स्टेजेस, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू, वहां पर आपके इनफ सिलेक्शन रेशियोज लगेंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल 200 में से एक कैंडिडेट सिलेक्ट होगा फेज 1 में, मे बी फेज 2 में अगर आप देखते हो तो 50-60 में से एक कैंडिडेट होगा। इंटरव्यू में जो हम सिलेक्शन रेशियो कहते हैं, 1 आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 1 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड। सो ऑल दीज सिलेक्शन रेशियोज आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन 2 फैक्टर्स, एक वैकेंसी होती है और दूसरे हाउ मच स्टूडेंट्स हैव गिवन द एग्जाम। सो दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू कंपेयर हियर कि एक्चुअली क्या होगा कट ऑफ के ऊपर, यानी कि आपके सिलेक्शन के ऊपर, इस 66 नंबर का, जो कि बहुत स्टूडेंट्स के ऊपर डाउट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ। नाउ वी अंडरस्टूड व्हाट द ओवरऑल योर वैकेंसीज आर। लुक एट द वैकेंसीज, फॉर एग्जांपल 140, इफ यू सी यहां पर ट्रेंड वगैरह कुछ नहीं है, रैंडम हुआ है, ठीक है। 145 से डिक्रीज हुआ 127, फिर से बढ़ गया, फिर तो एकदम स्पाइक आप देख सकते हो 2021 में। इट इज द ईयर, ये जो ब्लू कलर का डार्क यहां पर आपको कलर्ड सेक्शन दिख रहा है, इट इज द ईयर व्हेन द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द एग्जाम हैज चेंज्ड, ठीक है। तो हमारे लिए मोस्ट कंसर्निंग 2021 रहेगा, 22 रहेगा, 23 रहेगा और 24 रहेगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो यहां पर फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन भी नहीं करेंगे कि एनालिसिस सर आप स्क्यूड कर रहे हो, आप 2017-18 कैसे कंसिडर कर सकते हो, एग्जाम पैटर्न तो तब अलग था। सो लेट्स जस्ट कंसिडर फ्रॉम 2021। सो इफ यू ऑब्जर्व इट प्रॉपरली, अगर आप जरा ऑब्जर्व करोगे तो आप देख सकते हो कि जहां पर भी आपका ओवरऑल वैकेंसीज डिक्रीज हुआ है, आपका कट ऑफ भी डिक्रीज हुआ है, ठीक है। बट if you observe carefully in phase 1 also, in phase 2 also and final cutoff also, yes, with decrease in vacancies cutoff has decreased, but that cutoff has been not decreased drastically. अगर आप number of vacancies for each year and phase 1, phase 2 and final cutoff for each year, ये अगर आप किसी ग्राफ में प्लॉट करते हो तो आपको ये ग्राफ मिलता है। जस्ट ऑब्जर्व इट केयरफुली गाइज, फॉर ईच ईयर आपको ये ग्राफ मिलता है। सो आई होप दैट इट इज विजिबल। तो यहां से आप इस ग्राफ को देखने की कोशिश करो। द ब्लू वन इज नथिंग बट वैकेंसीज, लुक एट द ब्लू लाइन, बहुत ही स्टार्क डिफरेंस है। ये देखो फ्रॉम 2018 वैकेंसीज बहुत कम थे, फिर स्पाइक वैकेंसीज का हो गया और फिर से 2024 में यहां पर 66 हो गया। तो वैकेंसीज देख सकते हो ऊपर नीचे बहुत ज्यादा स्क्यूड है, लेकिन लुक एट द कट ऑफ लाइंस, ग्रीन, येलो एंड रेड। क्या ज्यादा डिफरेंस है कट ऑफ लाइंस में? नहीं। ऑल द 3 लाइंस आर पैरेलल टू योर x axis, all the lines are parallel to your horizontal main axis। तो इससे आपको ये पता लगता है कि चाहे वैकेंसीज ऊपर चले जाए या नीचे चले जाए, either it is 66, 200, 150, the overall cutoff whatever range is there, that cutoff range will not spike like vacancies। कट ऑफ ऊपर नीचे तो जा रहा है, लेकिन इतना ज्यादा स्क्यूड डिफरेंस नहीं है कट ऑफ में। अगर फेज 1 का भी देखते हो, वेयर फेज 1 इज एन एलिमिनेशन स्टेज, 1 लाख स्टूडेंट्स इन आरबीआई गिव फेज 1 एग्जाम, उसमें से जस्ट 3% क्लियर, रेस्ट 97% आर एलिमिनेटेड। सबसे टफ फेज 1 ही है, लेकिन उसका भी कट ऑफ रेंज देखो आप, वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ है, दैट मच डायरेस्टिक चेंज इज नॉट देयर। दिस शोज यू, अगर आप यहां पर देखते हो और अगर आप ब्लू सेक्शन से कंपेयर करते हो, फेज 1 कट ऑफ, फेज 2 कट ऑफ एंड फाइनल कट ऑफ, तो यहां पर देखो वैकेंसीज डिक्रीज हुई यहां पर, तो कट ऑफ भी 66 था, 63 था, फिर 54 था फेज 1 में। सिमिलरली 187 था फेज 2 में, 171 हुआ, 169 हुआ, मतलब रिडक्शन ही है कट ऑफ एज द वैकेंसीज रिड्यूस्ड। टोटल कट ऑफ भी ऐसे ही आपका फाइनल कट ऑफ रिड्यूस हुआ है। व्हाट अबाउट 2024? माय यर जजमेंट वुड बी, इन 2024
आपका कट ऑफ 20 या फिर 120 ऐसा ड्रेस्टिक कट ऑफ चेंज कुछ नहीं होने वाला है. इट विल रिमेन, द रेंज विल रिमेन सेम. माई रेंज हियर वुड बी 55 to 70 ओनली, विथ always there would be one common thing after 2021 which we all know. क्या है वो? RBI ग्रेड बी का फेज 1 एंड फेज 2 एग्जाम विल बी डिफिकल्ट, द लेवल विल बी डिफिकल्ट. आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, ESI करंट, ESI स्टैटिक, फाइनेंस करंट, फाइनेंस स्टैटिक, डिस्क्रिप्टिव पार्ट, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, ये सारे सेक्शंस जितने भी है, यू विल एक्सपेक्ट दैट द डिफिकल्टी विल बी ऑलवेज टॉप नॉच. यहां पर आप बिल्कुल, वहां पर RBI विल नॉट ट्राई टू give you easy question papers considering the competition also in this last 2 to 3 years. That is why I am telling cut off आप phase 1 का जब consider करोगे तो 55 to 70 इसी range में रहेगा. Yes, the difficulty of the exam, I think that the exam would be more difficult for many of the students who think कि 66 vacancies है तो मेरा क्या ही chance है. I will give you one thing, try to self analyze yourself. खुद को self analyze करो, और अगर आप 6 to 8 months से prepare कर रहे हो, अगर आप ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हो, इफ यू आर डिटरमाइंड, इफ यू आर डिसिप्लिन, इफ यू आर हैविंग दैट एज, देन ट्राई टू लुक एट योरसेल्फ दैट विल यू बी इन दिस 66 और नॉट. सिंपल एज दैट. एंड इफ द आंसर कम्स नो, then definitely you are honest with yourself and you can move on for your next attempt. But as you are a student who is preparing for a very long time, maybe 6 to 8 months, I don't think this number should bother you. हर कोई स्टूडेंट रहेगा, everyone who is going to be RBI grade B officer tomorrow, he will also have the same confidence. सारे स्टूडेंट्स अभी 66 नंबर देख के अंडर कॉन्फिडेंट ही है. even if we are giving the examples, we will also feel the same under confidence. The competition would be ruthless, no wonder about it. But cut off आपका 20 नहीं हो जाएगा और ना ही 120 हो पाएगा. ठीक है, it will be the same median range which is there. Same goes for phase 2 cut off. अगर फेज 2 कट ऑफ 170 से 200 के बीच में नहीं रहा तो देख लेना, इट विल बी सेम फ्रॉम 170 to 200. दिस वुड बी फेज 2 कट ऑफ. और जहां तक फाइनल कट ऑफ की बात है, 100% 200 से लेके 240 या 245, 200 to 245, यही आपका ओवरऑल फाइनल कट ऑफ रहेगा. देख लेना, मैंने जस्ट रेंजेस बताई है. कंसिडरिंग दैट डिफिकल्टी ऑफ RBI एग्जाम वुड बी टॉप नॉच. आई होप दैट दिस पर्टिकुलर ग्राफ ऑल्सो एक्सप्लेन्स यू थ्रू डेटा एंड थ्रू स्टेटिस्टिक्स कि भाई वैकेंसीज का कोई भी कट ऑफ्स के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं है उतना ज्यादा. ठीक है, अगर उतना ही ज्यादा होता तो अगर ये वैकेंसीज आपको दिख रही है यहां पर स्पाइक हुआ तो ये कट ऑफ भी आपको सिमिलरली नीचे स्पाइक या फिर ऊपर स्पाइक होना चाहिए था. बट नो, ऑल द लाइंस आर लिटिल बिट पैरेलल. इफ यू सी, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे तो जाएंगे ही, एंड दैट कुड बी सीन हियर. अगर आप 2021 से देखते हो, यस वैकेंसी रिड्यूस हुआ है तो कट ऑफ भी रिड्यूस हुआ है. अगर वैकेंसी बहुत ही यहां पर डायरेस्टिक रिड्यूस हुए तो कट ऑफ डायरेस्टिक नहीं रिड्यूस होगा. एज आई टोल्ड यू द रेंज, इट विल बी बिटवीन दैट ओनली. सो नाउ लेट्स ट्राई टू आंसर आवर लास्ट 4 क्वेश्चंस. First most important was, should I prepare for this year or next year? See, do not fall into the cycle of any of the competitive exam. एक साल इनफ होता है अगर आप डेडिकेटेडली प्रिपेयर करते हो. Now, are you a student who has dedicatedly prepared or not? Are you a student who has followed discipline? Are you making self analysis and self assessment, जिसमें ये निकल के आ रहा है कि you are full prepared? चाहे कल 10 सीट्स हो, मुझे एक चाहिए एंड आई विल क्लियर इट. सो दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन. वरना आपका एक अटेम्प्ट कब 5 अटेम्प्ट बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा. सेकेंड, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर फीलिंग कि सर कॉम्पिटिशन का क्या, विच वॉज द मेन क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द कॉम्पिटिशन, डू आई हैव एनी चांस? सो ऑलवेज रिमेंबर, the 66 number will not decide that are you going to clear or not, because cutoff is not dependent on that. So more importantly it will depend कि phase 1 phase 2 का आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है, मॉक टेस्ट आपने कितने दिए, and how easily you can clear those sectional cutoffs also and overall cutoffs also for each stage. And third question जो कि most of the students कह रहे हैं कि sir this 66 number it is actually अफेक्टिंग आवर मोटिवेशन, हम पूरी तरह से अब प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं एंड इट इज अफेक्टिंग आवर मोमेंटम. तो सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट these things like vacancies and all, these are enough reasons to quit. But look at the bigger picture. If your dream is big, if your objective or aim, goals are worthy enough, अगर आप सही में अगर कोई RBI ग्रेड बी ऑफिसर बनना चाहता है, अगर उसकी ड्रीम, उसका गोल इतना स्ट्रांग हुआ, तो ये बस एक नंबर आपके डिसीजन को चेंज नहीं करेगा. जस्ट थिंक अबाउट इट, जब आपने पहली बार डिसाइड किया था कि मैं RBI ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर करूंगा, दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनको डाउट था
कि वैकेंसीज का हमारे सिलेक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा. दैट इज व्हाई आई ब्रॉट दिस पर्टिकुलर एनालिसिस बेस्ड ऑन स्टैट्स ओनली. अब यहां पर आप देख सकते हो कि 2024 में पूरा स्पाइक हुआ है. इसका मतलब ग्रीन, येलो एंड रेड, दैट इज ऑल द 3 स्टेजेस कट ऑफ ऐसे स्पाइक हो जाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है. दे विल स्टिल कंटिन्यू टू बी इन द सेम पैरेलल लाइन. एंड रही बात फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग अबाउट द कॉन्फिडेंस, सर हमारे कॉन्फिडेंस को अफेक्ट हो रहा है. सो डोंट वरी, थिंक अबाउट एंड टेक स्टेप, 1 स्टेप एट अ टाइम. ठीक है, आगे ये मत सोचो कि आगे क्या होगा, फेज 1 में मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं, बस 60 सीट्स है तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं है. डू नॉट ब्रिंग सच क्वेश्चंस इन योर ओवरऑल थिंकिंग. रादर देन दैट यू शुड टेक 1 स्टेप एट अ टाइम. आप एक एक दिन में 4-4, 5-5 घंटे गिव इट टू ईच एंड एवरी सेक्शन for phase 1, phase 2 and prepare properly. Have a plan and strategize. Okay? So now considering this, that vacancies have reduced, one more thing comes into your mind, which would be the difficult sections जहां पर बहुत ही difficulty बढ़ सकती है और फिर आपको strategize कैसा करना है. So first thing I'll tell you, GA से बच के रहना. तो क्योंकि quant, reasoning, here you have to just clear the sectional cutoff. बट ओवरऑल कट ऑफ करने के लिए आपको इंग्लिश और जीए की मदद चाहिए. अब इंग्लिश तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कर सकते, बट दे विल मेक एंड ट्राई टू मेक यू सफर थ्रू योर जनरल अवेयरनेस. तो जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाना. दैट वुड बी अ गेम चेंजर. आई बेट इट. देख लेना. ठीक है, वी विल always try to support you through various GA sessions. YouTube पे जाओ, हमने already compilation and marathon session start कर दिए हैं for RBI Grade B exam because we expect कि GA में definitely difficulty ज़्यादा होगी. When it comes to phase 2, तो ESI current, finance current, same GA के parts and descriptive, ये पूरा game changer रहेगा. Now if you are an really honest student and diligent enough that this number doesn't affect you, this number will not stop your preparation. And if you are thinking about कि now I should make a proper plan in this last 50 to 60 days and sir I want to properly revise, I want to properly finish all the syllabus and most importantly the current affairs and everything, go on our Olive Board website, regulatory section में जाइए and here new batches we have launched, personalized mentorship last 60 days के लिए guidance पूरा आपको मिलेगा और उसके साथ साथ सारी जो RBI की deliverables है वो भी मिलेंगे, classes, notes, everything. यहां पर 3 बैचेस वी हैव लॉन्च्ड एज स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट. अगर आप करंट अफेयर्स में वीक हो तो आपके लिए आरबीआई ग्रेड बी 2024 कंप्लीट करंट अफेयर्स बैच फॉर फेज 1 एंड फेज 2. आदित्य सर इज आल्सो देयर इन दिस बैच एंड वी विल ट्राई टू कवर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स. नोबडी इज कवरिंग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स. इसका मतलब इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर 5 लेक्चर्स होंगे मंथली, हर एक मंथ के. रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस मंथली 5 से लेके 10 यहां पर लेक्चर्स होंगे. सो टॉपिक वाइज यहां पर आपको करंट अफेयर्स कवर मिलेगा. देन कम्स आरबीआई ग्रेड बी 2024 लाइव क्रैश कोर्स फॉर फेज 1 एंड फेज 2. इन दिस लास्ट 50 to 60 days वी विल कवर ओवरऑल फेज 1 एंड फेज 2 प्रिपरेशन. सारे के सारे लेक्चर्स को हम प्रिपेयर करेंगे, सारे सेक्शन, सारे सब्जेक्ट्स, लाइव क्लासेस, नोट्स, मॉक, सारी चीजें मिलेंगी. एंड देन कम्स फेज 1 सिलेक्शन बैच. दिस इज वन ऑफ अ काइंड उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्यूआरई में वीक है एंड current affairs may be weak hai. So if you are a student who is weak in both current affairs also and QRE also, then phase 1 selection batch is for you. Remember, in this live crash course you will get access to both of these batch. And when it comes to selection batch, that is your phase 1, you will get access to this current affairs also. तो आप डिसाइड करिए आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है. अगर वीकनेस की बात रही, we at Olive Board are there for you. All the 3 sections और 3 courses here are there. यहां पर आरबीआई सेक्शन में जाइए, सारे कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है. गो एंड चेक इट आउट एंड डोंट वेस्ट इवन अ मिनट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.